Good morning, class. Today we'll be studying about coefficient of variance. This is the last exercise or the last part of this chapter. But we'll understand the two exercises that were before this. I'm also going to wrap that up for you guys in this exercise so that it's a little bit simpler for you guys to understand what is the main objective of this chapter that we are talking about. So हमने वेरिएंस के बारे में पढ़ा था. वेरिएंस क्या होता है? डिस्पर्सन. फॉर एग्जांपल, इफ आई प्लेस दैट ऑन अ पीस ऑफ अ ग्राफ, I can tell who's more constant, who can perform more constantly. Okay, for example, this is A and A has been performing like this. I told you with one example, and B has been performing like this. Okay, so you know one thing, that A has been performing, even A has touched maybe 90 or 100. Okay, and the mean for both of them can be, if the mean for this is 50 and the mean for this is also 50, I'm just assuming. So the mean for A is 50, mean for B is 50 as well. So when I'm comparing both of them, I'm not able to figure out only by the concept of mean ki kaun behtar hai. Then this topic comes into introduction, that is called dispersion or variance. So dispersion basically होता क्या है? Dispersion is basically कि how far the spreadability has been gone. So this has spread a lot. You can see बहुत ज़्यादा फैल रखा है, ये ज़्यादा नहीं फैल रखा है. So I'll say that B is better than A. B is better than A. And then we were introduced to variance, and variance was able to help us much simpler way by bringing positive value, because this was negative. So variance helped us to understand that. So if we don't see this variance right now, variance कहाँ से उठा है? variance कहाँ से उठ के आया? आपका spreadability से. स्प्रेडेबिलिटी से उठ के आया है आपका वेरिएंस. पर मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेकर जाना चाहूँगा पीछे. स्प्रेडेबिलिटी का मतलब डिस्पर्सन भी होता है, पर डिस्पर्सन ने ढंग से काम नहीं किया हमारे लिए, इसलिए हम लोग क्या लेके आए थे? वेरिएंस लेके आए थे. स्प्रेडेबिलिटी क्या बताता है? स्प्रेडेबिलिटी ये बताता है स्प्रेडेबिलिटी कि जो भी आपका मीन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Okay, we'll take one example. Let's say there are some, what do we say, some observation given to us. Okay, so the observation that are given to us right now is 45. We'll take some observation. Let's say 5, 15, 25, 35, 45 and 55. And if I find the mean of this, I'll get mean for this is going to be 30. And if I put this in this equation, और जब मैं इसका सम ढूंढूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक करके पुट करूंगा, जैसे 5 माइनस 30 का स्क्वायर प्लस, बिकॉज सम है ये. ओके, 15 माइनस 30 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करता जाऊंगा, और आखिरी में क्या लिखूंगा? 55 माइनस 30 का स्क्वायर. तो जब मैं सबमिशन बोलते, जब मैं इसका टोटल करूंगा तो मेरे पे कितना आएगा? मेरे पे टोटल वैल्यू आएगी 1750, समथिंग लाइक दैट. ओके, इवन इफ इट्स नॉट करेक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन जस्ट अ पार्ट. ओके, सो मुझे इसकी स्प्रेडेबिलिटी पता लग गई कि कैसे स्प्रेड हो रखा है वो 1750. ओके, ऐसे स्प्रेड हो रखा है. नाउ दिस वाज पार्ट ए. अब दूसरा ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस करते हैं. देयर इज अनदर ऑब्जर्वेशन दैट टेक्स प्लेस. So the another observation that takes place, we'll just check that out, and that can be 15, 16, 17, 18, 19, 20 and so on, and this can be, let's say, 30 observation. How many observation was this? This was 1, 2, 3, 4, 5, 6. This was 6 observation. Okay, now I'm taking how many? 30 observation, 45 तक.
अब जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो इसका मीन भी मेरे पास कितना आएगा, 30 आया। अब आप देख लो इसका मीन भी आपके पास 30 आया है, इसका मीन भी आपके पास 30 आया है। पहली बात तो ये होगी हमने डिस्पर्सन क्यों करा था, क्योंकि मीन हमारे लिए कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका मीन भी 30 है, इसका मीन भी 30 है, सबसे पहली बात। सो आई कांट कंपेयर बिकॉज दोनों का मीन तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या आ रही है मेरी, 30-30। तो हमने क्या पिक्चर में क्या लेके आए थे, स्प्रेडेबिलिटी, या उसको हम डिस्पर्सन भी बोलते हैं। तो जब मैंने डिस्पर्सन स्टार्ट किया, ऐसे मेजर करते हैं डिस्पर्सन को, तो मैंने इसका भी डिस्पर्सन निकाला, और जब मैं इसका डिस्पर्सन निकाल रहा था तो मेरे पास आया 24800, 2480। नाउ यू गैस कैन कंपेयर दिस। इन दोनों का मीन सेम होने के बावजूद भी इसकी, इफ यू सी, इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है और इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है और डिस्पर्शन यू कैन से इज डिफरेंट। कैन यू गैस सी? सो आप लोग ने देखा अभी कि हमारा मीन से काम नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों का मीन सेम है। अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है या फिर उनको फिगर आउट करना है कौन बेहतर है, मेरा काम नहीं चला, क्योंकि दोनों का मीन सेम है और मुझे दोनों में से एक चूज करना है। दूसरी बात हमारे स्प्रेडेबिलिटी पे, डिस्पर्सन पे। डिस्पर्सन इसका कितना आया 1750, इसका कितना आया 2480। इससे हमें क्या पता लगा कि जो इसका डिस्पर्सन है, जो इस वाले का डिस्पर्सन है वो कम है, वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है इसके अकॉर्डिंग। बट जब हमने इसको चेक किया, जब हमने इसको चेक किया, ये ए वाला है, ये बी वाला है, तो जब मैंने इसको चेक किया और आप इसको पुट करोगे 5, 15, 25, 35, 45, 55, ओके, आप इसका डिस्पर्सन देख सकते हैं कितना दूर दूर है। और जब आप ये प्लॉट करोगे तो ये कैसे आएगा, 15, 16, 17, 18। और जब मैं ए के बारे में लिख रहा हूँ, ये डाटा या ये ऑब्जर्वेशन में या चेक करने के लिए लगा रहा हूँ नंबर लाइन में, और ये वाला भी ऑब्जर्वेशन में नंबर लाइन में चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, तो आपको इससे कुछ और रिजल्ट मिल रहा है। उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्प्रेडेबिलिटी कम है। इवन दो मेरा आंसर कुछ और कह रहा है, किसके बारे में, डिस्पर्सन के बारे में। तब जाके जब ऐसा हमारा आ नहीं रहा था, तब जाके हमने डिस्पर्सन को यूज करके हमने एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम था वेरिएंस। अब वेरिएंस मेरी मदद कर देता है क्या निकालने में, वेरिएंस मेरी मदद कर देता है ये निकालने में कि कौन बेहतर है, क्योंकि हम उसका स्क्वायरिंग करके अपॉन टोटल कर देते हैं। अब ये तो हमने टोटल करा, पर इसी को जब हम टोटल ई एफ से डिवाइड कर देंगे, इसको जो भी टोटल आया हमारा, हमारा क्या था डिस्पर्सन का फॉर्मूला, ई एंड सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, हमारे ये डिस्पर्सन का फॉर्मूला था। अब जो डिस्पर्सन का फॉर्मूला था हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया, ओके, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। या फिर अगर एफ आई आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, तो आप किससे डिवाइड कर दो, एफ आई से। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका बन जाता है वेरिएंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मीन से काम चलाया, मोड से काम चलाया और मीडियन से काम चलाया। तो अब हम कंपेयर करने लगे दो या तीन चीज को, तो मीन से काम नहीं हो रहा था, मोड से काम नहीं हो रहा था, मीडियन से काम नहीं हो रहा था, तो हमने किसका इस्तेमाल किया, डिस्पर्सन का काम लिया। पर डिस्पर्सन भी कहीं कहीं जगह हमें अपना आंसर सही नहीं दे रहा था, तो हमने डिस्पर्सन को इस्तेमाल करके क्या किया, वेरिएंस का इस्तेमाल किया। और डिस्पर्सन का जो फॉर्मूला था हमारे पास, ये था होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा तब्दीली करी या फिर थोड़ा उसे अंडरस्टैंड करके वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल दिया, और वेरिएंस को हमने क्या बोल दिया, स्क्वायरिंग करके नंबर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, तो वेरिएंस, ये वेरिएंस बन गया मेरा। ठीक है, इसके दूसरे फॉर्मूले भी ये अनग्रुप डाटा का है, और ग्रुप डाटा का अगर देखोगे आप, ये एफ आई आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन ई एफ आई। ओके, तो इसमें आप फ्रीक्वेंसी जुड़ जाता है, तो जब ये ग्रुप डाटा हो जाता है तो एफ मिल जाता है। फिर ज़्यादा और आपको वो थोड़ा स्मॉल करना है आपकी कैलकुलेशंस एंड ऑल, तब आपके में डी आई भी आ जाता है ना, डेविएशन का मेथड भी आ जाता है। फिर स्टेप डेविएशन आ जाता है जब आप टी भी इन्वॉल्व कर देते हैं, दैट इज डी अपॉन यू।
ओके, वो सेम इसी फॉर्मूला से जनरेट हो रखे हैं सब। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। अब हम एक पॉइंट पे आते हैं, जब हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक होता है वेरिएशन, सॉरी या वेरिएंस, वेरिएंस फॉर्म क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे लिखते हैं, पर ये दोनों हम निकाल क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा है स्टैंडर्ड वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो इसका मतलब समझते हैं हम लोग। वेरिएंस का जब भी मैं आंसर निकालूंगा, मेरा आंसर हमेशा जैसे मैं लड़कों के वेट के बारे में आंसर ढूंढ रहा हूँ, तो वो कैसे आंसर कैसे आएगा मेरा, क्योंकि वेरिएंस क्या है, वैल्यू क्या है उसकी, स्क्वायर है, तो मेरा आंसर कैसे आएगा, स्क्वायर में ही आएगा। समझ आ रहा है आप लोग को, मेरा वेरिएंस का जो आंसर आएगा हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, वो वैल्यू हटा देता है, क्योंकि आपका जो डाटा गिवन था, मे बी लड़कों का जो वेट था वो 55 kg, 60 kg, 65 kg, 63 kg, तो kg में था, और जो आपका वेरिएंस का आंसर आ रहा है वो kg स्क्वायर में आ रहा है, जो आपको नहीं चाहिए, आपको वापस किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो वेरिएंस क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, आपका आंसर किस में ला देता है, वापस केजी में लेके आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। ये है डिफरेंस किसका, आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्योंकि कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम वेरिएंस ये है क्यों और स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्यों है। वेरिएंस हमारा आंसर निकालने के लिए तो है, पर जो हमारा आंसर आता है स्क्वायर में आता है, और जो हमारा वो ऑब्जर्वेशन गिवन है वो कभी भी स्क्वायर में नहीं दिया जाता। तो हम चाहते हैं हमारा आंसर भी किस में आए, सेम यूनिट में आए, स्क्वायर में ना आए। तो इसीलिए हम क्या ढूंढते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढ देते हैं, ताकि हमारा आंसर सेम यूनिट में आ जाए। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जब हम पे जैसे हमें डाटा गिवन है केजी, और दूसरा डाटा हमें गिवन है विल डू दैट। ओके, आफ्टर दिस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब हम इसके बारे में समझेंगे थोड़े अच्छे तरीके से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्यों नाम दिया गया है इसे। ओके, तो ओके, अब आ जाओ आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। I have two data given over here, data A and data B. Data A has all the heights of your class students, which is in centimeter, and the weight, which is in kg. Now I want to understand और figure out कि किसकी spreadability या किसका variance जो हम बोलेंगे, जो कौन ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब किसका, अगर मैं ग्राफ देखूंगा ऐसे करके, वेट में ज़्यादा फैला हुआ है, या फिर मैं देखूं या हाइट में ज़्यादा फैला हुआ है, या वेट में ज़्यादा फैला हुआ है। अगर मुझे इसकी स्प्रेडेबिलिटी चेक करनी है, तो इनमें से किसकी ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी है। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग, आई कैन नॉट कंपेयर सेंटीमीटर विथ केजी एट ऑल, आई कैन नॉट कंपेयर, which is a very very hard thing, that how can I compare, this is in centimeter, this is in kg, not at all, I can't compare this at all. So to eliminate the units, so the units can be cancelled out, then we involve what, coefficient of variance, ताकि coefficient किसका निकल जाए, वेरिएंस का निकल जाए। तो इसीलिए आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन की जो आंसर आएगा, अगर केजी का है तो केजी में आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप किससे डिवाइड कर दो, मीन से डिवाइड कर दो, क्योंकि मीन भी जो आपका आएगा आंसर वो किस में आएगा, केजी में आएगा। आप मीन कभी निकाल के देखना कि आपका सारे लड़कों का जो मीन है, अगर 45 kg आ रहा है, क्लास 11th के 45 kg आ रहा है, तो केजी में आएगा। ठीक है, आपका मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन भी केजी में आएगा, मीन भी केजी में आएगा, और जब दोनों आएंगे तो दोनों को कैंसिल आउट कर देना और इनटू 100 कर देना, ताकि सब परसेंटेज में से निकल जाए। तो बेसिकली होता क्या है, इसका नाम हमने दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सीवी। सीवी कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। और फिर दूसरे डाटा के भी क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। और हम इनटू 100 क्यों कर रहे हैं, ताकि पूरी क्वांटिटी किसके 1 और 100 के बीच में आ जाए और कंपैरिजन इजीली पता लग जाए। जैसे अगर इसका आ गया 36% और इसका आ गया 45%, तो आपको इजीली पता लग गया किसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्प्रेडेबिलिटी कम है, दिस इज मोर कंसिस्टेंट,
This is not that much consistent as compared to this. Okay, so this is the difference between variance. okay, बेसिकली जो हमने स्प्रेडेबिलिटी सीखी थी या डिस्पर्सन सीखा था उसका पार्ट ही वेरिएंस है, ताकि हमें और स्पेसिफिक आंसर मिल सके। और जो वेरिएंस का हम निकाल रहे हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो हमारी इसलिए हेल्प कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ताकि हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर सकें कि किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है व्हेन द यूनिट्स आर डिफरेंट। okay, so this is the formula: coefficient of variance, standard deviation upon mean into 100. So this is the formula that we'll be using in this exercise for all the questions that are to come, but we'll also use the formulas that were in the previous exercise for some of the questions, because it is needed. So I'll explain you, I'll come back to you guys with one or two examples. So one can be a hard example from the exercise, the other one can be an easy one. Okay, okay, let's have a look in question number 4 first. It's a very simple question because mean has been given, standard deviation has been given. You don't have to find anything in this. So we'll find directly CV, that is called coefficient of variance. So the formula for coefficient of variance is standard deviation upon mean. So I calculated for weight, I calculated standard deviation 5.6 upon mean 63.2 into 100, then I got 8.86. The interesting thing you would see over here is this was in kg, but the kg has been cancelled out and only a number is over here. Same with this, there was centimeter were cut out and only number is over here. Now I can compare किसकी variability ज़्यादा है. So I can say easily height की variability ज़्यादा है. It means weight is more consistent. जो boys का weight है वो more consistent है. Consist का meaning ये है कि ज़्यादा vulnerability नहीं है, यह ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एक जन 10 किलो का और आखिरी वाला जन 80 किलो का है, इतनी ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी नहीं है। वेट में कम है स्प्रेडेबिलिटी, क्योंकि कुछ जन 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, इसी के बीच में है, कम स्प्रेडेबिलिटी है। हाइट में बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी है, नथानी बहुत लंबा है और एट द सेम टाइम हु इज़ द shortest one, maybe one of the girl, she's not that tall, so there's a lot of spreadability. But height में क्या होता है, even if the girls are smaller, they are good in size or in weight or something, mass. So you guys can understand how this takes place, because the numbers can easily be compared, not the units. Okay, let's have a look in question number 10. What does question number 10 has to offer us? Now this said, share prices of two companies X and Y are given below for 10-week period. Find whose share is more stable. They are trying to make us understand or trying to tell us find or whose share is more stable. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब मुझे क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। बट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में आपको पता है आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन चाहिए, एंड देन इनटू 100. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई थॉट फाइंडिंग आउट मीन फॉर दिस एक्स वाली कंपनी. सो एक्स वाली कंपनी का मीन कितना आया, आई कैन राइट मीन 51, और वाई वाली कंपनी का मैं ऐसे लिख देता हूँ वाई डैश, जो वाई डैश आया वो मीन है 105. सो दोनों कंपनीज का मुझे मीन तो मिल गया, पर मुझे अभी क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए. अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसे करके, ये तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, देन अगर यहाँ f है तो f, नहीं तो यहाँ सिंपली नंबर, जितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और स्क्वायर उधर जाएगा तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है, मीन का होल स्क्वायर अपॉन m. सो मुझे करना क्या है, मुझे ये ढूंढना है, ये पार्ट ढूंढना है. अगर मुझे ये पार्ट मिल गया तो मेरा आंसर आ गया. तो मैंने शेयर ऑफ एक्स कंपनी के शेयर्स लिख दिए, ये देखो मैंने एक्स कंपनी के शेयर्स लिख दिए, और मैंने क्या कर दिया, इनका मीन ढूंढ लिया. मीन तो मुझे पता ही है कितना है, 51. तो 51 में से 35 माइनस 51 माइनस 16, 54 माइनस, ऐसे करना है ना, 54 माइनस 51, क्योंकि 51 मीन है तो सब में मीन को माइनस करना है, तो मेरा ये आया, और उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि जो भी आया इसका उसका स्क्वायर कर दो, ये आ गया मेरे पास, और टोटल कितना है मेरे पास 360.
फिर मैंने लिखा शेयर्स ऑफ वाई, मैंने शेयर्स ऑफ वाई लिखा, वाई माइनस मीन, वाई कंपनी का मीन जो था तो 105 था मीन, अगर आप यहाँ पे चेक करो मीन क्या था 105, तो आप 108 माइनस 105 320 ऐसे ऐसे करके ये आ जाएगा। अब इसका भी स्क्वायरिंग कर दो, तो जिसको स्क्वायरिंग करके आएगा वो 40 आएगा। ये है किसका आंसर, ये इसका आंसर है सम ऑफ वाई माइनस वाई मीन ऐसे करके स्क्वायर। तो जब मैं वेरिएंस ढूंढूंगा या स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढूंगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, इक्वल्स टू एक्स की कंपनी के लिए स्टैंडर्ड वो ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे क्या है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन, तो स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा, इसका कितना है 360 अपॉन 10, कट हो गया 36 बचा, 36 किससे होता है 6 आया, तो मेरा स्टैंडर्ड जो डेविएशन है तो मेरा कितना आया एक्स कंपनी का 6, और अब मैं वाई कंपनी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 40 अपॉन 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 आएगा मेरा आंसर। तो मेरे पास वाई कंपनी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब दोनों कंपनीज को कंपेयर करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड सीवी। सीवी क्या होता है, ये एक्स वाले का ढूंढ रहा हूँ मैं, और मीन भी एक्स वाले का है इंटू 100, so that is going to be this is 6 over 51 into 100। ओके, ये CV किसका है एक्स कंपनी का है। और फिर दूसरा CV भी ढूंढ लेते हैं हम, CV वाई कंपनी का, दैट इज गोइंग टू बी, नीचे y लिख रहा हूँ सो दैट समझ आ जाए, इंटू 100, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन मीन इज 105 इंटू 100। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 11.76, बहुत बड़ा आएगा, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं 11.76, और इसका कितना आएगा 1.90। अब ये बताओ इन दोनों को आपको देख के क्या लग रहा है कि किसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये कम स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, सो आई कैन से कंपनी वाई इज मोर स्टेबल इन इन्वेस्टिंग द शेयर प्राइजेस in the market or something like that, okay, but you can just straight away write a sentence that company Y is more stable, Y is more stable, क्योंकि इसका जो आंसर आया कम आया, तो जो जिसका कम आता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होती है। Okay, so that's how you have to do these questions and understand the questions. If there is any problem, we'll see that questions on Friday. Okay, so have a good day, and just make sure that you guys know that you guys have test on Monday of first 3 chapters. Okay, first 3 chapters का test है आपका Monday को. Thank you so much for watching this video. Have a good day everyone.